Jai Siya Ram. Myself, Dr. Dharmendra Das. I am assistant professor in the Department of Physiology and Biochemistry. और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF बोलते हैं। एंड CSF सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस एंड नॉलेज पर्पस ऑल्सो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन। सो CSF इज डिफाइंड एज द क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ठीक है, CSF देखने में कैसे रहेगा? तो क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड कोई भी स्मेल नहीं रहेगा। दैट इज ऑर्डरलेस एंड इट इज कलरलेस ऑल्सो। एंड इट सर्कुलेट्स फ्रॉम द ventricles of brain and subarachnoid space and central canal of spinal cord। ठीक है, सो CSF एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो सर्कुलेट होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, जो सेंट्रल कैनल है स्पाइनल कॉर्ड में वहां तक सप्लाई होगा एंड सब एराक्नोइड स्पेस में भी सर्कुलेशन होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ CSF। सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है दैट इज वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ CSF इज अबाउट 150 ml 150 ml and it varies from 100 ml to 200 ml। and next जो प्रॉपर्टी है that is rate of formation, and rate of formation is about 0.5 ml per minute। मतलब हर मिनट में 0.5 ml ऑफ CSF हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में सिक्रेशन होती है। एंड अगर फॉर्मेशन हम फुल डे के लिए देखेंगे फॉर 24 आवर्स, देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर डे। ठीक है, सो 500 ml ऑफ पर डे CSF सिक्रेशन होती है एंड एज वेल एज एब्जॉर्प्शन भी CSF का इतना क्वांटिटी होती है। एंड जो भी आपके कैविटीज है, जो भी वेंट्रिकल्स है, जो भी सब एराक्नोइड स्पेस है, उनके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ CSF प्रेजेंट रहेगा? दैट इज अबाउट 150 ml। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF, दैट इज अराउंड 1.005 एंड इट्स रिएक्शंस इज स्लाइटली alkaline। ठीक है, and CSF is alkaline in nature। So these are the properties of CSF, and now we will discuss about the composition of CSF। and composition में क्या है कि CSF is basically composed of water parts as well as solid parts। So let me classify CSF। So CSF is basically classified into two parts. One is water part and another is solid part। Water part is around 99.13% and rest solid part is contains of 0.87%, and solid part is again distributed into two parts। ठीक है, एक हो गया आपका ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एंड अनदर इज inorganic substance। okay, inorganic substance। so in case of organic substance there will be sugar, proteins, cholesterol, different types of acids like amino acid,
lactic acid and uric acid and waste products like creatinine. So these are the organic substance which will present in the solid part of CSF. Okay, and now we will talk about inorganic substances of CSF. So inorganic substances में आते हैं मेनली सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स, phosphate. These are the inorganic substances which will present in the solid part. And some of the lymphocytes are also present in CSF. Okay? And CSF is the part of extracellular fluid, ECF. CSF is the part of extracellular fluid, mainly transcellular fluid. Okay, so this is the composition of fluid CSF. And now we will discuss about how CSF is formed and how CSF circulates in the body. So CSF का फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन समझने से पहले हमको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स याद करना होगा, जिसमें आपका फर्स्ट आता है द कैविटीज जिसके अंदर CSF फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया वेंट्रिकल्स जिसमें आता है लैटरल वेंट्रिकल, देन थर्ड वेंट्रिकल एंड देन फोर्थ वेंट्रिकल. एंड इसके साथ आपको याद करना पड़ेगा कोरोइड प्लेक्सस. ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस, that is choroid plexus, and choroid plexus is the main structure from where CSF is secreted, choroid plexus. And choroid plexus is composed of two structures, one is pyometer and another is ependymal cell layer. And next जो हमको याद करना है that is about foramen, FORAMEN, फोरामेन, जिससे फ्लूइड एक वेंट्रिकल से दूसरा वेंट्रिकल में पास होती है. So the name of the foramens are foramen of Monro, Monro. Another is foramen of Laska, LUSCHKA, Laska. Another is foramen of Magendie, MAGENDIE, foramen of Magendie. इसके साथ आपको याद करना पड़ेगा two structures, that is cistern, CISTERN, cistern. And in case of cisterns there are two cisterns. One is cistern of lateralis and cistern of magna. Okay, and इसके साथ आपको याद करना पड़ेगा
द लेयर्स ऑफ द ब्रेन सब्सटेंस, ठीक है, द कवरिंग्स। सो लेयर्स में आती है फर्स्ट पाया मैटर, देन पाया मैटर, देन एराक्नोइड मैटर, and then dura matter, D-U-R-A, dura matter. But dura matter is consists of two layers. One is meningeal layer, that is inner layer, and outer layer is periosteal layer, ठीक है। So these are the structures जो आपको याद रखना पड़ेगा। एंड हम हर स्ट्रक्चर को कहाँ पे प्रेजेंट रहता है एंड हाउ इट वर्क्स ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ cerebral hemisphere, and then brainstem started, and then pons, and then medulla oblongata, and then central canal of spinal cord, and then spinal cord. Okay, this is the picture of diagram, and then हम देखेंगे कि फर्स्ट वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। सो वेंट्रिकल्स जो आपका लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल इज सिचुएटेड लेटरली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलामस, एंड थैलामस के लेटरल साइड में प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज lateral ventricle, and then we will see third ventricle, and third ventricle is situated in between the thalamus, ठीक है, in between the thalamus there will be third ventricle, and third ventricle के नीचे एक नैरो ट्यूब प्रेजेंट रहती है जो कनेक्ट करेगी, एक नैरो ट्यूब प्रेजेंट रहेगा and which will connect fourth ventricle, which will connect fourth ventricle. So basically fourth ventricle इसको बोला जाता है fourth ventricle, this is third ventricle, and this is left ventricle। किसी एक साइड को आप एक बोल सकते हैं, इस साइड को आप दो बोल सकते हैं, जैसे नेमिंग नहीं किया गया, इनका नाम लेटरल वेंट्रिकल्स किया गया। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, एंड बीच वाला पार्ट, बीच मिडिल वाला पार्ट इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्टस सिल्वियम, एंड देन फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल द स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनल अराइज होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रिकल्स। नाउ वी विल सी कोरोइड प्लेक्सस। सो कोरोइड प्लेक्सस में दो फॉर्म रहता है, एक होता है पायामिटर एंड एपेंडाइमल सेल लेयर्स। फर्स्ट देखेंगे कोरोइडल प्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सो कोरोइडल प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन lateral ventricle and roof of the third ventricle, and also present in fourth ventricle, and then we will see how choroid plexus is formed, formation इनका कैसे होता है। So suppose this is your blood vessel, and blood vessel में आपका आर्टरी हो गया जो आपका लेटरल कैविटी में जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल में जाएंगे,
suppose this part is your lateral ventricle, and choroid artery will enter into lateral ventricle, and then artery will form capillary membrane, and then venous blood will come out through vein. This is vein, this is artery, and it is capillary tuft. ठीक है, सो जैसे कैपिलरी टफ्ट केविटी के अंदर जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, इट विल कवर्ड बाय इनर लेयर that is known as pyometer. So pyometer will cover the capillary tuft, and pyometer and this capillary membrane will known as, and it is known as tila choroidea, TELA tila, choro idea, tila choroidea. And जब pyometer and capillary membrane covers, इसके बाद और एक लेयर कवर करती है, that is specialized this ependymal cell layer, जो प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द cavity of ventricles, and cavity of ventricles इसको कवर कर देंगे pyometer को. Then it is known as choroid plexus. फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? Simply capillary tuft and then pyometer and covered by ependymal cell layer. It is known as choroid plexus. ठीक है, सो अभी सिंपली आपको इतना समझना है कि choroid plexus जो प्रेजेंट रहेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स में, थर्ड वेंट्रिकल्स में, एज वेल एज फोर्थ वेंट्रिकल में. एंड choroid plexus फॉर्मेशन कैसे होगा? दैट इज बाय pyometer and ependymal cell layer. एंड सिक्रेशन कैसे होता है? सो सिक्रेशन का जो प्रोसेस है, दैट इज ependymal cells आर सो स्पेशल, बहुत स्पेशल टाइप ऑफ सेल का लेयर रहता है जो अनवांटेड सब्सटेंस को वेंट्रिकल का केविटी में, वेंट्रिकल केविटी के अंदर आने नहीं देता है. एंड जो वांटेड सब्सटेंसेस है, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस है, वही सिर्फ पास हो सकते हैं. सो ये द फर्स्ट एपेंडाइमल सेल लेयर पास करता है हाईली सेंसिबल फॉर सोडियम पंप. ठीक है, फर्स्ट ही विल ट्रांसफर सोडियम and then passively follows chloride and then H2O and then organic substance and inorganic substance through different transporters. It will carries from capillary to ventricular cavity, lateral ventricle. ठीक है, and ventricular cavity से पोटासियम कैपिलरी में रिटर्न होती है. इसीलिए CSF में सोडियम का काउंट, सोडियम लेवल ज्यादा रहता है और पोटेशियम का लेवल लेस रहता है, डिक्रीज कम रहता है. ठीक है, सो CSF फॉर्मेशन, CSF का स्ट्रक्चर हो गया, CSF फॉर्मेशन हो गया. अब हम देखेंगे हाउ इट विल सर्कुलेट्स. सो इट सर्कुलेट्स, CSF फॉर्मेशन हो गया है, कहाँ पे हुआ? तो दैट इज इन लेटरल वेंट्रिकल. कहाँ से हुआ? So that is from choroid plexus, and then it will go from lateral ventricle towards third ventricle. ठीक है, lateral ventricle से third ventricle में जाएगा, पर कैसे जाएगा? That is from foramen of Monro. Okay, let me पहले मैं दिखाता हूं कि फोरामेन्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे. फर्स्ट वन, द फोरामेन ऑफ मुनरो इज प्रेजेंट इन लेटरल वेंट्रिकल. ओके, फोरामेन ऑफ मुनरो इज प्रेजेंट इन लेटरल वेंट्रिकल. देन फोरामेन ऑफ लस्का इज प्रेजेंट इन बिटवीन द
pons and medullary junction and इसको इसको pons साइड में ओपनिंग रहती है, ठीक है। सिंपली दोनों साइड में देयर विल बी 2 फोरामेन्स एंड दोनों का नाम है फोरामेन ऑफ लस्का। नाउ वी विल सी फोरामेन ऑफ मेजेंडी। फोरामेन ऑफ मेजेंडी प्रेजेंट रहता है मीडियली, फोरामेन ऑफ मेजेंडी प्रेजेंट रहता है मीडियली एंड इन मेडुला एरिया, मीडियली प्रेजेंट रहेगा एंड मेडुला एरिया में प्रेजेंट रहेगा। नाउ वी विल सी सिस्टर्न। सो सिस्टर्न प्रेजेंट रहता है जो फोरामेन ऑफ लस्का है, लस्का से जो फ्लूइड बाहर आएंगे यहाँ पे दिस एरिया इज नोन एज सिस्टर्न ऑफ लैटरलिस एंड मेजेंडी से जो फ्लूइड बाहर आएंगे इट विल नोन एज सिस्टर्न ऑफ मैग्ना, ठीक है। मीडियली से निकल के आ रहा है दैट्स व्हाई इट इज मैग्ना, और सिस्टर्न ऑफ मेडुलरिस क्योंकि मेडुलर रीजन में बाहर आते हैं। सो सिस्टर्न ऑफ लैटरलिस एंड सिस्टर्न ऑफ मैग्ना। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर एंड और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है लेयर्स। सो इनिशियल लेयर जो ब्रेन सब्सटेंस को कवर करता है दैट इज डन बाय पाया मैटर, inner covering is done by paya matter and then next layer is known as arachnoid matter, ठीक है। next layer is known as arachnoid matter एंड जो पाया मैटर एंड एराक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इस स्पेस को बोलते हैं सब एराक्नोइड स्पेस एंड सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर CSF प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो next layer that is present is known as dura matter. So dura matter present रहती है cerebral hemisphere के साइड में and इसमें भी 2 layers present है, एक हो गया meningeal layer and another is periosteal layer and meningeal layer and periosteal layer both are diffused, दोनों diffuse हो जाते हैं and मिडिल एरिया है, मिडिल एरिया में they will form a triangle, एक ट्राइंगल से डिप्रेशन दिखाई देगा and this triangular space is known as dural sinus, okay, dural sinus। इसका दूसरा नाम है सुपेरियर सेजाइटल वेनस साइनस, ओके। सो दीज आर द लेयर्स, सिस्टर्न्स एंड फोरामेन्स। नाउ सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSF सर्कुलेशन कैसे होता है एंड इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एंड इसका प्रेशर कितना रहता है, सिटिंग पोजीशन में कितना है, लाइंग पोजीशन में कितना है, अगर एक साइड में सोएंगे तो CSF का प्रेशर कितना रहता है एंड डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एक लंबर पंक्चर किया जाता है तो कौन सा लेवल में किया जाता है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन सेकंड पार्ट। होप आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।